السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام، احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کہ آپ احباب نے سماعت فرما لیا کہ آج کی اس نشست میں یہاں پہ خطاب فرمانے کے لیے شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا سید طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے تشریف لانا تھا، ان کی جگہ پر محترم بھائی عبدالقیوم مغل صاحب کے حکم پر ان کی نیابت کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن میرے فوراً بعد جماعت کے نامور عالم دین، سحر بیاں خطیب، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کونے کونے میں توحید و سنت کی آواز کو بلند کرنے والا شہزادہ خطیب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب اللہ کا قرآن بھی سنائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سنائیں گے۔ میں انتہائی اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے ابھی سنا سید طیب الرحمن زیدی صاحب، ان کی خوش دامن، ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ چند دن پہلے جماعت کے ایک نامور عالم دین شیخ الحدیث مولانا نصر اللہ خالد صاحب ملتان والے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مالک کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دن آنا ہے، ہم نے بھی رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی، یہ خیال اور تصور اسے آ گیا کہ میں نے رب کائنات کے دربار میں پیش ہونا ہے، میرے مالک نے، میرے خالق نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ بتا، میں نے تجھے جو زندگی عطا کی تھی، میری عطا کی ہوئی اس زندگانی میں سے کتنی میری فرما برداریاں کر کے آیا ہے اور کتنی میری نافرمانیاں کر کے آیا ہے۔ اگر فرما برداری اور اطاعت گزاری والی زندگی ہوگی تو وہاں پہ شرمندگی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں انسان سرخرو ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی نافرمانی میں، رب ذوالجلال کی سرکشی کے اندر اس نے اپنی زندگی کو گزار دیا ہوا، تو پھر یاد رکھیں وہاں پہ رونا پڑے گا، وہاں پہ پچھتانا پڑے گا، لیکن تیرا اس دن کا پچھتانا پھر کام نہیں آئے گا۔ آج رب ذوالجلال کے دربار کے اندر اپنی ان آنکھوں سے چند قطرات اللہ کے حضور پیش کر دے،
आंसुओं के चंद कतरात अपने रब के दरबार में पेश कर दे। अगर आज रब्बे जुल जलाल के दरबार में अपने रब के खौफ से, अपने रब को याद करके अपनी आंखों से आंसुओं के चंद कतरे भी लेकर आ जाएगा। महबूबे कायनात ने फरमाया है, कौनैन के ताजवर ने फरमाया है, सच्चों के सच्चे नबी ने फरमाया है, पाकबाजों के पाकबाज आका का इरशाद मुबारक है, वो जहन्नम की आग जो साल हा साल से जल रही है, हजारों साल उसको जलाने के लिए रब्बे कायनात ने आग को भड़काया है। वो जहन्नम की आग, जिस जहन्नम की आग से जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है, वो जहन्नम की आग रब्बे कायनात तेरे इन आंसुओं के चंद कतरात की वजह से भुसम करके रख देगा। हाँ हाँ मेरे प्यारे भाई, आज हमने दुनिया वालों को देखा है, कोई बीमारी की वजह से रोता हुआ नजर आता है, कोई रिश्तेदारों के गमों की वजह से रोता हुआ नजर आता है। किसी की आंखों से आंसू इसलिए निकलते हैं कि उसका कारोबार जिंदगी खत्म हो गया है, उसकी दुकान खत्म हो गई है, उसकी फैक्ट्री कारखाना बंद हो गया है, इसलिए आंखों से आंसू बहाता है। हमने दुनिया में बड़े बड़े लोगों को देखा है कि सेहतमंद थे, बीमारी ने आ लिया है, आज आंखों से आंसू बहाते हुए नजर आते हैं। हमने वालिदैन को देखा है, बूढ़े वालिदैन की आंखों से आंसू बहते हुए देखे हैं, जो औलाद के सदमों की वजह से अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात टपकाते हैं। हमने बूढ़ी मां को देखा है, वो अपने औलाद के लिए आंसू बहाती हुई नजर आती है। हाँ हाँ हमने औलादों को भी देखा है, वो अपने वालिदैन की मैयतों को उठाकर जनाज़गाह की तरफ ले जाते हुए आंखों से आंसू बहा रहे होते हैं। बड़े बड़े लोग आपने देखे, बड़े बड़े हमने भी देखे, जिनकी आंखों से आंसुओं के कतरात टपकते हैं, वो रोया करते हैं। हाँ हाँ मैं कहता हूँ, बाप अपनी औलाद के लिए रोए, ये रोने वाले आंसू ये रब्बे कायनात को बड़े पसंद है। औलाद अपने वालिदैन के लिए रोए, ये आंसू भी बड़े अल्लाह को पसंद है। अपने गमों दुखों को याद करके रोने वाला इंसान, उसके आंसुओं की भी बड़ी लाज है। लेकिन आ तो देख इस आंसू की कितनी लाज है, जो बंदा अपने रब की याद में रोता है, रात की तन्हाइयां होती हैं या दिन के उजाले होते हैं, अकेला है, अपने रब को याद कर रहा है, रब्बे जुल जलाल को याद करके रोता है, अल्लाह इसके आंसुओं की इतनी लाज रखता है। वो जहन्नम की आग जो बरसहा बरस से जल रही है, अल्लाह उसको हमेशा हमेश के लिए तेरे लिए भुसम कर देता है। वो जहन्नम की आग बुझ जाती है इन तेरे चंद आंसुओं के कतरात की वजह से। कभी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे आंसू भी ला कि जो रब की याद में बहे हो, कोई ऐसे आंसू भी रब्बे कायनात के दरबार में पेश कर, जो रब्बे कायनात को याद करके और गुनाहों की जिंदगी पर शर्मिंदगी का इजहार करके तेरे आंखों से निकले हो। कायनात के इमाम ने फरमाया, नबी सुल्तान ने फरमाया, अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पाक पकीज़ा तैयब ज़बान से यूं अरशाद फरमाया, मन जो बंदा ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, तन्हाई का आलम है, रात की तारीकियां हैं, घर के एक कोने में बैठा हुआ है, मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है, अपनी जिंदगी के माहो अय्याम को याद करके रो रहा है। हाय मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर गए, हाय मेरी जिंदगी के 30 साल गुजर गए, 40 50 60 70 80 साल मैंने गुजार दिए, कितनी मैंने रब की नाफरमानियां की है, कितनी मैं रब की बगावतें करके आया हूं, किस कदर मैं रब की सरकशियां करता रहा हूं। अल्लाह के हुक्म मुझे सुनाने वाले आके सुनाते रहे, रब का कुरान सुनाते रहे, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाते रहे, मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी जिंदगी की बहारों पे बहारें गुजर गई, मैंने अपने रब को मनाने के लिए कभी आंखों से आंसू नहीं बहाए। ये रोता है रात की तारीकी में, तन्हाई में, कोई इसे नहीं देख रहा। रब्बे कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद करके रो रहा है, दुनिया वाले तुझे नहीं देख रहे, मैं अर्श वाला तुझे देख रहा हूं। तेरी आंसुओं की इतनी लाज रखता हूं, इधर तेरी आंखों से ये आंसुओं के चंद कतरे टपकते हैं, उधर मैं जहन्नम की आग को तेरे ऊपर हराम कर देता हूं। अल्लाह को याद करके रोने वाली आंखें
रब्बे कायनात को बड़ी महबूब है, बड़ी प्यारी है, जो अल्लाह को याद करके रोते है, रब्बे कायनात का खौफ और डर उसके दिल में आ जाता है, गुनाहों को खैर बाद कह देते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली जिंदगी गुजार लेते हैं। आइए कौनैन के ताजवर का एक और फरमान समाअत फरमा लीजिए। इसी हदीस मुबारक का दूसरा हिस्सा कायनात के इमाम ने फरमाया, जिस इंसान को दुनिया की कोई हुसीन और जमील औरत दावत गुनाह पेश करे, हसब वाली भी है, मनसब वाली भी है, हुसन वाली भी है, गुनाह की दावत देती है, ये आगे से क्या देते हैं, इन्नी अखाफुल्लाह, बीबी मुझे अल्लाह का डर है, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, मैं अपने रब की बगावत नहीं कर सकता, मैं अपने रब की सरकशी नहीं कर सकता। ये रब के याद में डरने वाला, अल्लाह को याद करके गुनाहों को छोड़ देने वाला और रब को याद करके आंसू बहाने वाला कौनैन के ताजवर ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा जब महशर की सख्तियां होगी और तपश होगी और हरारत होगी, हर इंसान अपने पसीने के अंदर शराबूर होगा, कोई घुटने घुटने तक, कोई टखने तक, कोई कमर तक, कोई अपने जनाब कंधों तक, कोई अपने ही पसीने में डूबता हुआ नजर आ रहा होगा। वो इंसान जो अपने रब को याद करता है, अपने रब का खौफ दिल में रखता है, अल्लाह से डरने वाला इंसान कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल के पास आएगा, अल्लाह के मैदान माशर में आएगा, अल्लाह की अदालत में पेश होगा, जब कोई साया नहीं होगा। रब्बे जुल जलाल इसको अपने अर्शे बरी का साया नसीब फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह का डर और खौफ दिल के अंदर पैदा कर ले। आज दुनिया वालों के डर तो हमें बड़े हैं, पुलिस का डर होता है, फौज का डर होता है, उस्ताद का डर होता है, वालिदैन का डर होता है, अपने से बड़े का डर होता है, फैक्ट्री कारखाने के मालिक का डर होता है। उसके डर की वजह से कई चीजें तरक कर देते हैं। आओ मेरे प्यारे भाइयों, कभी रब के डर और खौफ के लिए अल्लाह की नाफरमानी वाले मामलात भी तरक कर दे। आइए कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा है इस इस्लाम सिटी के अंदर। ये मैं पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, ये दावत फिक्र आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस बस्ती में रहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस टाउन के रहशियों को, वासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। सीरतुन नबी के जलसे सुनते हो, नबी कायनात की अजमत और शान का तस्करा सुनते हो, आओ मेरे नबी की सीरत का एक ये पहलू भी देख लो। मेरी प्यारी अम्मी जी ऐशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मोमिनों की माँ बयान फरमाती है, नबी रहमत कायनात के इमाम की रातें कैसे गुजरा करती थी। कायनात के इमाम रात को लंबा लंबा कियाम करते, आपके पांव मुबारक सूज जाते, आपके कदमों मुबारकों के अंदर वरम पड़ जाते। है मैं कुर्बान जाऊं, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये सीरत है। मेरी माँ कहती है, अम्मी ऐशा सिद्दीका कहती है, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ने तो आपको सारी कायनात से आला बनाया है, सारी कायनात से अरफा बनाया है, सारी कायनात से आला औला बनाया है। आप जैसा रब्बे कायनात ने इस रुए जमीन पे किसी को नहीं बनाया। आप तो सैयदुल वुल्द आदम हैं, आप तो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, आप तो खातिमुन नबीयीन हैं, आप तो खातिमुल मुरसलीन हैं। आपसे आला अरफा रब्बे कायनात ने किसी को बनाया ही नहीं है। आप अल्लाह के आगे इबादतें करते हैं, इतनी अजमतें हैं, इतनी शानें हैं। अल्लाह ने आपको जन्नत का वारिस बना दिया है, आपको मुकाम महमूद अता कर दिया है। प्यारे नबी, आप इतनी इतनी इबादतें फिर क्यों करते हैं? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, जिस रब के एहसानात, जिस रब के इनामात मुझ मोहम्मद पे इतने हैं, मैं उस अल्लाह का अबदन शकूरा ना बन जाऊं? मैं ये सजदे इसलिए करता हूँ, ये लंबे लंबे क़याम और रुकू इसलिए करता हूँ कि मैं अपने रब का अबदन शकूरा बन जाऊँ। मेरी माँ जी फरमाती हैं, जब आप सजदे में होते रसूलुल्लाह अपने रब को याद करके इतना रोते, इतना रोते। अम्मी जी कहती हैं, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना ऐसे नजर आता कि आपके सीना मुबारक से आवाजें ऐसे आती जैसे हंडिया उबल रही है। हंडिया के उबलने से, पानी के जोश मारने से जिस तरह आवाजें आती हैं, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह को याद करके सजदे की हालत के अंदर रोते थे, आपके सीना मुबारक से ऐसे आवाजें आया करती थी। नबी रात की तारीकियों में उठ उठ के रोए, और आज मोहब्बत का दावा करने वाला, रसूलुल्लाह से प्यार का दावा करने वाला, और ये कहने वाला कि मैं रसूलुल्लाह का मुहिब हूं, नबी से प्यार करने वाला हूं, नबी का गुलाम हूं, गुलामी रसूल में मौत को भी सीने से लगाने के लिए तैयार हूं, ये दावा मोहब्बत करने वाला
उसकी एक रात नहीं, कई कई महीनों की रातें गुजर गई, कई कई सालों की रातें गुजर गई, एक दिन भी या एक रात भी ऐसी नजर नहीं आती जिस रात में ये अपने रब को याद करके रसूलुल्लाह की तरह रोया हो। जरा सोच तो सही, तेरा मोहब्बत का दावा कितना सच्चा है और मोहब्बत के दावे में तो कितना पक्का है। कायनात के इमाम रात की तारीकियों को उठ उठ के रोते हैं। ये है सीरतुल नबी, ये है मेरे नबी का अंदाज। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब को याद करके रोया करते। अब जिन्होंने नबी कायनात से इस सीरत को सीखा था, नबी कायनात के इस तौर अतवार को सीखा था, नबी के इन तरीकों को सीखा था, सीरतुल नबी को हकीकत के अंदर सही मानों के अंदर जिन्होंने समझा था, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपके और हमारे महबूब खतीब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद बिन्यामीन आबर साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह रहमान आप और उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। इंशाअल्लाह रहमान मैं समझता हूँ कि इंतज़ार करना कितना सख्त होता है। अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत। हम भी पहले नंबर पे आए हुए थे और अब टाइम मिल रहा है। चलें कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह रहमान मुफ्सर मैं कर रहा हूँ। जिन्होंने रसूलुल्लाह से सीरत को सीखा था, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सुनने वालों, जिन्होंने सीरत को सीखा वो जनाबे सिद्दीक अकबर है। जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमारी अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा तहरा अबू बकर सिद्दीक की बेटी, अबू बकर सिद्दीक की लख्ते जिगर अपने बाप से मिलने के लिए तशरीफ लाती हैं। बाप की हालत को देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगे। मेरी माँ रो रही है, जारों की तार आंसू बह रहे हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, बेटी तू क्यों रोती है? बाप की मौत को देखकर कि मेरा आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है तब रो रही हो। सिद्दीका ने कहा था, नहीं नहीं अब्बा जी मैं इसलिए नहीं रो रही, मुझे तो मौत पे इतना यकीन है, मौत के मसले पे मुझे इतना यकीन है। बैनन नहरी व सहरी, मेरी गोद के अंदर कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन रहमते कायनात रहमते आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के अंदर इस दुनिया को छोड़कर अपने रब के पास हाजिर हुए हैं। मुझे मौत पे बड़ा यकीन है, मौत की वजह से नहीं रो रही। सिद्दीक अकबर ने कहा, सिद्दीका फिर क्यों रोती हो? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा तो माँ जी हमारी कहने लगी, मैं इसलिए रो रही हूँ, आंसू इसलिए बहा रही हूँ कि अरब का बहुत बड़ा ताजर, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं और घर के अंदर दुनिया का इतना माल नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक को नए कपड़ों के अंदर कफन दिया जा सके। इतना माल नहीं है। आज जैलसाजी करने वालों ने, सिद्दीक के ऊपर उंगलियां उठाने वालों ने, बातें करने वालों ने अपने खुद से बातन का मुजाहरा किया और कहा कि सिद्दीक ने अली की खिलाफत पे कब्जा कर लिया था, उनकी खिलाफत को गस्ब कर गए थे। आओ मैं बताना चाहता हूं, जो अपना सारा माल लुटा दे वो गासिब हो सकता नहीं। सिद्दीक ने सारा माल लुटाया था या नहीं? सारा माल लाकर रसूलुल्लाह के कदमों में ढेर कर दिया था और यही वजह थी कि मौसने इंसानियत पैगंबरे पैगंबरा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में फरमाया था, मैं मोहम्मद पे जिस जिसका कोई एहसान है, जिस जिसकी कोई नेकी है, आज मैंने उसके एहसानात का बदला चुका दिया है, उनकी नेकियों का बदला चुका दिया है। अल्लाह सिद्दीक एक ऐसा फर्द है, सिद्दीक एक ऐसा फर्द है, सिद्दीक के एहसानात मेरे ऊपर इतने हैं, इनामात इस कदर है। अल्लाह मैं सिद्दीक के एहसानात का बदला नहीं चुका सका, सिद्दीक के एहसानात का बदला रोजे क़यामत अल्लाह ही उसे अता करेगा। जिसके एहसानात इतने वो गासिब नहीं हो सकता। आइए जिंदगी के आखिरी लम्हात दावते फिक्र दे रहे हैं, हलालो हराम को समझो, हराम से बच जाओ, ये सिद्दीक है। कहते हैं बेटी इसमें गम करने वाली कौन सी बात है, अगर नया कपड़ा नहीं तो कोई बात नहीं। अबू बकर की एक वसीयत भी याद रखो, अबू बकर सिद्दीक ये वसीयत करके इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है कि अबू बकर के इंतकाल के बाद अगर नया कपड़ा मुयस्सर भी आ जाए वो किसी बेवा के ऊपर खर्च कर दिया जाए या किसी यतीम को दे दिया जाए, ये पुरानी चादरें इन्हें धोकर अबू बकर को इसमें कफन दिया जाए।
ये खौफ खुदा है, ये अल्लाह का डर है। अगर ये खौफ आज तेरे और मेरे सीने में आ जाए, कोई भाई अपने भाई की जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, अपनी बहन का विरासत में हिस्सा मार के नहीं खाएगा, लोगों के मालो अमवाल को जुल्मन जबत नहीं करेगा। अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर आ जाए, ये तालीम दे के जा रहे हैं सिद्दीक अकबर। आइए देखिए, फारूक आजम है, रात की तारीकियां हैं, गलियों के अंदर जा रहे हैं, एक दरवाजे के पास गुजरते हैं, अंदर से एक माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटी बकरियों का दूध धो लो, धोकर उसके अंदर कुछ पानी मिला दो ताकि दूध ज्यादा हो जाए, कुछ पैसे हमें ज्यादा मिल जाए। आगे से बेटी कहती है, अम्मा जी आपको पता नहीं है, अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने, हजरत उमर फारूक ने पाबंदी लगा दी है, कोई दूध के अंदर पानी नहीं मिलाएगा। मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। ये माँ आगे से कहती है, बेटे उमर भला यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा पानी मिला दे। उसे नहीं पता था दरवाजे के ऊपर उमर ही खड़ा है, उमर ही सुन रहा है, पता नहीं माँ बेटी को, लेकिन ये आपस में मुकालमा तारीख ने अपने सीने में इसे सबक कर लिया। ये माँ कह रही है दूध में पानी मिला, बेटी कहती है अमीरुल मोमिनीन ने पाबंदी लगा दी है, पानी नहीं डाल सकती। माँ कहती उमर कोई देख रहा है। बेटी ने कहा अम्मा उमर नहीं देखता, उमर का रब तो देखता है। और रात की तारीकियों में बेहयाई करते हुए, फहाशी और यानी की मजालत में जाते हुए, सादो सरंगियों के मामलात में जाते हुए, लोगों के जुल्म से माल को छीनते हुए, अगर ये तसव्वुर तेरे और मेरे दिल में आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना। ये है दावत फिक्र, सीरतुन नबी का पैगाम ये है। अमीरुल मोमिनीन ने दरवाजे पे निशान लगा दिया, सुबह हुई, पैगाम भेजा, जिस दरवाजे पे निशान लगे उस घर के सरबराह को बुलाया जाए। घर का सरबराह आया तो ये बूढ़ी सी माई है, ये औरत जो चलने से आजज है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक कहते हैं उस घर की मालकन अम्मा तुम हो? ये अम्मा कहती हाँ मैं ही हूँ। उमर फारूक कहते हैं बताओ रात को जो सहरी के वक्त अपनी बेटी से कह रही थी वो क्या बात थी? इस औरत की कपकपी जिस्म पे तारी हो गई, पांव के नीचे से जमीन सिरकने लगी, डरने लगी। उमर से भला कैसे ना डरती? उमर तो वो था कि कैसरो किसरा महीनों की मुसाफत पे बैठे हुए उस उमर से कांप उठते थे। हाँ हाँ, उमर तो वो था कि शैतान उमर को आते हुए देखता, रास्ता बदल जाता था, वो उमर था। ये बुढ़िया कैसे ना कांपती, डरने लगी, कांप रही है, आजिज़ है, मस्कीन है, फकीर है, आजिज़ और मस्कीनी के आलम में डरते हुए कोई लफ्ज जुमला जुबान से नहीं निकलता। कहते हैं उमर फारूक अम्मा मैंने तुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया, मैंने तुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया है, मैं तुझसे अपने बेटे के लिए उस तकवे वाली, अल्लाह का डर रखने वाली बेटी तलब करता हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए तेरी वो बेटी चाहिए, मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। 22.5 लाख मुरब्बा मील का हाकम अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए इंतखाब करता है, तकवे वाली, रब से डरने वाली बेटी का इंतखाब करते हैं। आज तेरे मेरे स्टेटस ने दुनिया को बिगाड़ के रख दिया। जवानों की उम्रें गुजर गई, बेटियों की उम्रें गुजर गई, तू और मैं स्टेटस देखते रहे, हमारा लेवल नहीं बनता, मेरा स्टेटस नहीं है, हमारे लेवल पर बंदा होगा फिर हम निकाह शादी करेंगे। देखिए अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक है, रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता है, अपने बेटे का निकाह किससे कर रहे हैं? जिसके घर में बकरियों का दूध उनका घर का खर्चा पूरा नहीं करता। इसीलिए तो मां कह रही थी ना पानी डाल दो, दूध ज्यादा हो जाएगा, खर्चा पूरा हो जाएगा। ऐसी खातून से अपने बेटे की शादी की, अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था। इसी खौफ और डर की वजह से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का लम्हा गुजरा है। बात को मुख्तसर करना चाहूंगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, मालो मता भी दी है, रसूलुल्लाह के महबूब है, रसूलुल्लाह के महबूब कितने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा रुकैया का निकाह किया, फौत हो गई। सैयदा उम्मे कुलसूम ब्याह थी, वो भी फौत हो गई। फिर तीसरी बेटी के लिए नबी कायनात
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ उस्मान, अगर मेरी तीसरी बेटी निकाह के बगैर होती तो मैं उसके साथ तेरा निकाह कर देता, अगर वो फोत हो जाती चौथी ब्याह देता, पांचवी कर देता, अल्लाह मुझे 40 बेटियां अता करता, मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता जाता। वो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोते थे रब को याद करके, आखिरत की मंजिलों को याद करके, कब्र को याद करके इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती। तारीख और सीरत की किताबों में लिखा है, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस चेहरे की इस जगह के ऊपर ऐसे सुराख बन गए थे पानी के गिरने की वजह से, रो रो के आंखों से निकलने वाले कतरात उन्होंने रुखसारों के ऊपर निशान डाल दिए थे, इतना रब को याद करके रोते थे। ये खौफे खुदा है, ये अल्लाह का डर है। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले, ईद का दिन है, बेटी ने गले में हार पहना हुआ है। हजरत अली उल मुर्तजा की नजर पड़ गई, कहा बेटी ये हार मैंने लेकर नहीं दिया, कहां से आ गया है? औलादों से पूछा करो, बेटी ये चीज मैंने लेकर नहीं दी, कहां से आ गई? ये सूट तेरे पास कहां से आ गए? ये बूट तेरे पास कहां से आ गए? ये तेरे पास मोबाइल कहां से आ गया? ये फलानी चीजें तेरे पास कहां से आ गई? बेटों से बेटियों से पूछा करो। अली उल मुर्तजा कहते हैं, बेटी ये हार तेरे गले में है, मैंने तो खरीद के नहीं दिया, कहां से आया है? बेटी भी अल्लाह वाली थी, कहती अब्बा जी मैंने बैतुल माल के नगरान से ईद के 3 दिनों के लिए आरियतन उधार लिया है कि ईद के ये 3 दिन लोगों के बच्चों ने खूबसूरत जरक बरक लिबास पहने हैं, ज़ीनत इख्तियार की है। वक्त के हुक्मरान खलीफतुल मुस्लिमीन की बेटी भी अपने गले में हार डाल ले। 3 दिन उधार के लिए मैंने हार लिया, उधार लेना कोई ऐब नहीं। हजरत अली उल मुर्तजा ने उसी वक्त बैतुल माल के नगरान को बुलाया और बुलाकर कहा, मुझे बता ये हार तूने दिया है? कहा अमीरुल मोमिनीन 3 दिन के लिए उधार ये हार मैंने आपकी बेटी को दिया है, 3 दिन के बाद ये फिर बैतुल माल में चला जाएगा। हजरत अली उल मुर्तजा ने क्या कहा था, शेरे खुदा ने क्या कहा था, फाते खैबर ने क्या कहा था? हजरत अली उल मुर्तजा कहते हैं, मुझे ये बता कि ये बैतुल माल सिर्फ अली की बेटी का है या उम्मत की हर बेटी का है? कहा ये सब का है, पूरी उम्मत का है। फिर कहा अगर उम्मत की हर बेटी को तूने ये हार पहना दिया है, फिर अली की बेटी के लिए जायज है। अगर तूने उम्मत की हर बेटी को ये हार नहीं पहनाया, फिर अली की बेटी के लिए भी जायज नहीं है। हार को पकड़ा, उतार के उस नगरान के जिम्मे कर दिया और कहा आइंदा से इस बात का ख्याल रखना, अली की औलाद को दूसरों पर फौकियत ना देना, अगर तूने ऐसे किया तुझे तेरे ओहदे से हटा दिया जाएगा। ये अल्लाह का डर था, ये तकवा था, परहेजगारी थी जो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे उनके अंदर मौजूद थी। आखिरी बात मेरी, नबी कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पक्के मुहिब्बे रसूल थे। असल रसूलुल्लाह के मुहिब ये थे, नबी की अदाओं से मोहब्बत करने वाले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकल गए, वहां पे इन्होंने एक बकरी ज़बा की, गोश्त बनाया और खाने के लिए दस्तरखान लगा दिया। ये दोस्त वहां से वे मिलकर खाना खाने लगे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर पड़ी कि दूर जंगल के अंदर कोई चरवाहा, गदड़िया, बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ, वो देखो वहां पे कोई बंदा नजर आ रहा है, जाओ उसको बुला के लाओ। इस जंगल बियाबान में उसके पास खाना नहीं होगा, पीने के लिए कुछ नहीं होगा, चरवाहा है, उसके पास जाओ, उस गदड़िए को बुला के लाओ, हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। एक बंदा गया, उसको बुलाकर लाया। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, भाई हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। ये गदड़िया, बकरियां चराने वाला चरवाहा क्या कहता है? इन्नी साइमुन, मैं तो रोजेदार, मैंने रोजा रखा हुआ है, अरब के रेगिस्तान है और इन रेगिस्तानों के अंदर नफली रोजा रखा हुआ। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, भाई तू बकरियां चराता है, जंगल बियाबान में आता है, कई पहाड़ की चोटियां तुझे अबूर करनी पड़ती है, कई रेगिस्तानों से तुझे गुजरना पड़ता है, और फिर तूने रोजा रखा, कोई फर्जी रोजे भी नहीं है। इसने कहा मैं तो अल्लाह को याद करने के लिए, अपने रब के तकवे और परहेजगारी के लिए रोजा रखता हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा चलो इसका इम्तिहान लेते हैं, दिल में कहा इसका इम्तिहान लेते हैं। फिर कहने लगे भाई ऐसे करो, अपनी बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, उसकी कीमत हमसे वसूल कर लो, और शाम को जब रोजे की इफ्तारी का टाइम होगा, वो बकरी जो हम ज़बह करेंगे उसका गोश्त बनाएंगे, सालन बनाएंगे, आपको
अफ्तारी के लिए भी देंगे और साथ भी कुछ गोश्त दे देंगे, कीमत भी हमसे वसूल कर लो। ये गुलाम कहने लगा, गदड़िया कहने लगा, हजरत आपको पता नहीं ये बकरियों का मालिक मैं नहीं हूं, बकरियों का मालिक तो कोई और है, मैं तो उसका गुलाम हूं, अपने आका की इजाजत के बगैर मैं बकरी फरोख्त नहीं कर सकता। तकवा था, परहेजगारी थी, अल्लाह का डर था। इब्ने उमर कहने लगे, भाई तेरे मालिक को क्या पता कि तूने बकरी सेल की है, बकरी फरोख्त की है। या जंगल में कोई भेड़िया आया और तेरी बकरी को उसने चीर फाड़ दिया, या जंगलों की पहाड़ों की चोटियों के ऊपर वो बकरी गुम हो गई, ऐसे हो जाया करता था। तू अपने मालिक को कह देना, एक बकरी जंगल में गुम हो गई, या भेड़िया खा गया, या पहाड़ों की चोटियों पे गुम हो गई, अपने मालिक को कह देना, उसे क्या पता। हजरत नाफे कहते हैं, मैंने देखा अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये कलिमात उसे कहे कि तेरा मालिक तुझे देख नहीं रहा, अपने मालिक को ये कह देना। उस गदड़िए ने ऐसी अपनी उंगली को उठाया, नाफे कहते हैं मैंने देखा उसका हाथ कांप रहा था, कांपती हुई उंगली के साथ उसने आसमानों की तरफ हाथ को बुलंद किया और लर्जती हुई आवाज से कहने लगा, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। आज मैं मालिक को तो धोखा दे सकता हूं, अपने रब को क्या कहूंगा। कल क़यामत के दिन जब रब की अदालत में पेश होऊंगा, मेरे रब को तो पता है मैंने क्या किया है। ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, वो अल्लाह कहां गया। बस ये कलिमात थे और कहते हुए ये गदड़िया वहां से भागने लगा। नाफे कहते हैं मैंने देखा अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने सर को झुका लिया, आंखों से दरियाओं को बहा दिया, कतरात टपक रहे हैं आंसुओं के, ज़ारो किदार रोते जा रहे हैं और जुबान पे एक ही कलमा है, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। सीरतुन नबी का पैगाम ये है, अगर आज आपके दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए, हम अल्लाह की नाफरमानी और बगावतों से बाज आ जाएं, अल्लाह का की नाफरमानी और बगावत करते हुए, शराबी शराब पीते हुए, जानी जना करते हुए, बदकार बदकारी करते हुए, चोर चोरी करते हुए, डाका डालने वाला डाका डालते वक्त और लोगों के माल हड़प करने वाला मालों को हड़प करते वक्त, मालों में मिलावट करने वाला मिलावट करते वक्त अगर उसे ये तसव्वुर और बात ज़हन में आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इंशाअल्लाह गुनाहों से बाज आ जाएगा, फिर अल्लाह की तरफ से इनाम भी मिलेंगे। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जिस बंदे को ये तसव्वुर आ गया कि मैंने अपने रब के सामने खड़ा होना है और अल्लाह के सामने खड़ा होने से वो डर गया, व नहन नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने आप को अपनी ख्वाहिशात से रोक लिया, बचा लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना फिर अल्लाह जन्नत बना देगा। कुरान का दूसरा मुकाम और मेरा सलाम, रब्बे कायनात ने फरमाया, वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ऐ मेरे बंदे, आज मुझसे डर कर गुनाह को छोड़ देगा, कल क़यामत के दिन मेरे दरबार में आएगा, तुझे दो दो जन्नतें अता कर दूंगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे आप सबको हकीकी मैनों के अंदर अपना खौफ और डर अपने सीने में डालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर।